Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. As you know, all students, that we are doing chapter 10, and today we are going to start our last topic of this chapter. And yesterday we discussed about quadrilaterals and polygons, in which we studied about regular polygons and irregular polygons, and the name of the polygons on the basis of their sides. Three polygon figure name is triangle, four-sided figure name is quadrilateral, five-sided polygon name is pentagon, six-sided hexagon, seven-sided polygon name is heptagon, eight-sided polygon name is octagon, and nine-sided polygon name is nonagon, and 10-sided polygon name is decagon. So students, after this topic, today we are going to start our next topic, which is three-dimensional shapes. And we will call three-dimensional shapes as 3D shapes. And students, we are on book page number 184 and 85. Firstly, before studying this topic, three-dimensional shapes, we will recall our previous shapes like one-dimensional shapes, two-dimensional shapes, then we will come on three-dimensional shapes. Students, you are looking here that I draw a line segment of 6 cm AB line segment. Because students, this line segment has only length है इसके पास, and there is no breadth, no height, no thickness. So this is called a one-dimensional shape. And students, next figure is ABCD, a figure which is having two dimensions as length and breadth. And this figure name is rectangle. And students, the figure which having only two dimensions such as length and breadth are called 2D shapes. And now students, come on these figures. You are looking that with the square shape. I made two figures. This figure is with rectangular base and this with square base. And students, you are looking that in this figure there is length, breadth and height. So an object which is having length, breadth and height are called 3D shapes. And students, this figure name is cube. And the figure which is having rectangle as its base, जिसके बेस में क्या है, रेक्टेंगल है, और इसके पास भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है स्टूडेंट्स, और इस फिगर को हम नेम देते हैं cuboid. So these are the two example of 3D shapes, and 3D shapes are those shapes which is having length, breadth and height. So students, I am showing you now one live example of these two shapes. क्यूब का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल आप टेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, डाइज. यू प्लेज आई थिंक लूडो एंड यू नोज अबाउट इट लूडो. एंड लूडो को जिससे हम प्ले करते हैं दैट इज कॉल्ड अ डाइज, है ना. डाइज जो है वो स्टूडेंट्स बिगेस्ट एग्जाम्पल है क्यूब शेप का. और क्यूब शेप को कैसे फॉर्म करना है, ऐसे स्क्वेयर लेना है और इस तरीके से फिर आपने ऐसे यहाँ पर एक स्क्वेयर ड्रॉ करते हैं हम इस तरीके से, ये हमारे पास ऐसे शेप बनती है स्टूडेंट्स क्यूब की. सो स्टूडेंट्स, क्यूब का एग्जाम्पल है डाइज और कुबोइड का एग्जाम्पल मैं आपको शो करूंगी स्टूडेंट्स. कुबोइड के लिए मैंने एक मैच बॉक्स लिया. स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग हियर दैट दिस इज अ मैच बॉक्स. एंड स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग हियर दैट इस मैच बॉक्स के पास लेंथ भी है और ये कितना चौड़ा है, कितनी चौड़ी है ये मैच बॉक्स, ये इसकी ब्रेड्थ है, और हाइट कितनी लंबी है ये मैच बॉक्स, ये इसकी हाइट है. सो इस मैच बॉक्स के पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और इसके पास हाइट भी है. सो स्टूडेंट्स, जिस फिगर के पास लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट
तीनों डायमेंशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ 3D शेप. सो दिस मैच बॉक्स इज अ 3D शेप एंड दिस फिगर नेम इज cuboid. Okay students, and now length, breadth, height जिस भी फिगर के पास होती है उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड. सो 3D शेप्स का अदर नेम आप बोल सकते हो सॉलिड्स. नाउ स्टूडेंट्स, सॉलिड्स टू टाइप्स के होते हैं, सॉलिड्स विद फ्लैट सरफेसेस एंड सॉलिड्स विद कर्व्ड सरफेसेस. स्टूडेंट्स, सॉलिड्स मीन्स 3D शेप्स. 3D शेप्स टू टाइप्स की होंगी, फ्लैट सरफेस वाली जिनका सरफेस फ्लैट होगा, और कर्व्ड सरफेस मीन्स कोई भी कर्व फॉर्म करेंगी. इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स फ्लैट सरफेसेस में. कैसा कैसा सरफेस आ सकता है? सरफेस हो सकता है रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर. जिस सॉलिड का फ्लैट सरफेस रेक्टेंगुलर होगा दैट इज कॉल्ड अ प्रिज्म. वो उसको हम कहां स्टडी करेंगे? प्रिज्म के अंदर. और जिस फ्लैट सरफेस वाली सॉलिड के पास ट्रायंगुलर सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड पिरामिड्स. सो स्टूडेंट्स, इन सॉलिड्स we will discuss three things. First is prism, in which we will study rectangular or square base, and pyramids, in which we will study about triangular surfaces, and third type is solids with curved surface. ऐसे surfaces जिनके surface curve shape में होंगे, उन solids को हम discuss करेंगे, means उन 3D figures को हम discuss करेंगे. So students, let's come on the book page number 184. And you are looking that students here table is given and first column is prism, second is pyramids and third is solids with curved surface. Students, prism हमने अभी क्या स्टडी किया? वो solids जिसमें हम rectangular surfaces को डिस्कस करेंगे या square surfaces को, that is depend on the figure, are called prisms. And pyramids, the solids with triangular surfaces which meet at a vertex. ऐसे सॉलिड्स जिनके पास ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगे और जो वर्टेक्स के साथ मीट होंगी उनको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द वन मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड्स. स्टूडेंट्स, प्रिज्म और पिरामिड्स में मेन डिफरेंस क्या है? प्रिज्म के अंदर आपको अपर एंड लोअर बोथ जो बेस होंगे वो सेम होते हैं, और पिरामिड्स में क्या होता है? पिरामिड्स में आप देखोगे स्टूडेंट्स, पिरामिड्स के अंदर जो फिगर का नेम होगा बेसिक फिगर वही होती है, और उसके जो सरफेसेस होते हैं, अदर फेसेस होते हैं, वो ट्रायंगुलर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्रिज्म. प्रिज्म में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स क्यूब और क्यूबॉइड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्यूब और क्यूबॉइड में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? क्यूब को हम बनाते हैं स्क्वायर बेस के साथ और क्यूबॉइड को बनाते हैं हम रेक्टेंगुलर बेस के साथ. एंड स्टूडेंट्स, क्यूब को अगर मैं प्रिज्म का नेम देना चाहूं तो मैं क्यूब को बोल सकती हूँ स्क्वायर प्रिज्म, बिकॉज इसका जो बेस है अपर और लोअर बेस दोनों क्या है? स्क्वायर है, अपर भी और लोअर भी. और क्यूबॉइड को मैं कौन सा प्रिज्म बोल सकती हूँ? रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बिकॉज इसके जो अपर और लोअर बेस होते हैं वो कौन से होते हैं? रेक्टेंगल शेप में होते हैं. सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, और उनके नेम है क्यूब और क्यूबॉइड. नेक्स्ट हम आते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म. आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल बना हुआ है आपके पास और प्रिज्म बनाया है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म. नेक्स्ट इज पेंटागनल प्रिज्म. पेंटागन अ पॉलीगन विद 5 साइड्स. 5 साइड्स के साथ देखो ये पेंटागन बनाया, फॉर्म हुआ है और उसको प्रिज्म की शेप दी गई है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिज्म. इसी तरीके से आप हेक्सागनल में 6 साइड्स होती हैं, हेक्सागनल प्रिज्म बना सकते हो. हेप्टागनल 7 साइड्स के साथ प्रिज्म बना सकते हो. सो स्टूडेंट, दीज आर द प्रिज्म्स. नाउ कम ऑन पिरामिड्स. पिरामिड्स में हमने क्या स्टडी किया? ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगे और जो वर्टेक्स के साथ मीट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहूंगी किस तरीके से हम पिरामिड्स फॉर्म करते हैं. आप देख रहे हो फर्स्ट फिगर का नेम है ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनाना है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रायंगल बेस लेना है. ओके, फिर आपको एक कॉमन वर्टेक्स लेना है और कॉमन वर्टेक्स को आपको हर वर्टेक्स के साथ मीट करना है. इस वर्टेक्स के साथ भी मीट किया, 3 वर्टेसेस होते हैं ना ट्रायंगल में, इसके साथ भी मीट किया और इस वर्टेक्स के साथ भी मीट किया. सो जो आप देख रहे हो कि बेस तो हमारे पास ट्रायंगल है,
लेकिन जो उसके कॉमन वर्टेक्स लिया, इस कॉमन वर्टेक्स के साथ जो सरफेसेस बन गए, अदर सरफेसेस बन गए, वो कैसे बन गए? वो भी ट्राइंगल की शेप में आ गए। सो स्टूडेंट्स, आपको एक मेजर डिफरेंस क्या है प्रिज्म और पिरामिड्स में? इसके अपर और लोअर बेस प्रिज्म के सेम रहते हैं, और पिरामिड्स में क्या होता है, जो अपर बेस होता है वो एक शार्प नोक आती है, और जो लोअर बेस होता है वो मेन बेस होता है, जो फिगर का नेम होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ट्राइंगुलर पिरामिड, और ट्राइंगुलर पिरामिड का दूसरा नेम क्या होता है? टेट्राहेड्रन। इसको हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में आपको क्या करना है? सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करना है, फिर आपको एक कॉमन वर्टेक्स लेना है, और फिर उसके हर वर्टेक्स के साथ उसको क्या कर देना है? हमने मीट किया। सो सभी के सभी ट्राइंगुलर सरफेसेस बन गए ना, ये देखो कितने सारे। सो दिस इज ए स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट हेक्सागोनल पिरामिड मीन्स सबसे पहले आप हेक्सागन ड्रॉ करोगे और फिर कॉमन वर्टेक्स के साथ हर वर्टेक्स को मीट कर देंगे, तो हमारे पास ट्राइंगुलर सरफेसेस बन जाएंगे। आप देख रहे हो, जो उसका अपर बेस है वो शार्प नॉक है, और जो लोअर बेस होता है वो मेन फिगर होती है, जो फिगर का नेम होता है। नाउ स्टूडेंट्स, these are the prism and pyramids. Now come on the solids with curved surfaces. आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ऐसी सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे, ऐसी 3D शेप्स जिनका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? कर्व शेप में होगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल है स्फेयर का। आप स्फेयर का एग्जांपल टेक कर सकते हो। आप देख रहे हो ये कर्व शेप में है, ये इसका इंटरनल सरफेस होता है, लेटरल सरफेस, और ये हमारे पास स्फेयर शेप है। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट्स हमारे पास सिलेंडर, और आप देख रहे हो कि जो सिलेंडर की शेप है स्टूडेंट्स, सिलेंडर का आप एक लाइव एग्जांपल अपने घर से ले सकते हो। सिलेंडर की शेप आपने देखी होगी, उसका अपर बेस भी सर्कुलर होता है, लोअर बेस भी ऐसे सर्कुलर होता है, और ये बीच में रेक्टेंगल होता है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, सिलेंडर इज द सॉलिड विद कर्व्ड सरफेस, और हैं ये सभी की सभी सॉलिड्स मीन्स 3D शेप्स। इनके पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और हाइट भी होती है। नाउ कोन के लिए आप लाइव एग्जांपल स्टूडेंट्स अपने आइसक्रीम कोन ले सकते हो, इस शेप में होता है ना आइसक्रीम कोन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो कोन है वो एक एग्जांपल, आइसक्रीम कोन जो है वो एग्जांपल है हमारे पास उस सॉलिड का, उस 3D शेप का जिसके पास कर्व्ड सरफेस होता है। और आप देख रहे हो हमने इस तरीके इस कोन को हमने रोटेट किया हुआ है ना, तो वो जो सर्कुलर बेस है वो डाउन साइड में आ गया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सॉलिड्स विद कर्व्ड सरफेस, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 185, एंड स्टूडेंट्स यू आर लुकिंग दैट ऑन अप साइड देयर इज अ कुबॉइड है, और कुबॉइड के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या डिस्कस किया था आपके साथ? लाइव एग्जांपल मैच बॉक्स का। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 3 चीजें डिस्कस करना चाहूंगी कि कुबॉइड का फेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, और एजेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि इस मैच बॉक्स के अंदर फेस कितने फेस हैं इसके? 1, ये पहला फेस है इसका, ये इसका दूसरा फेस, ये 3rd, ये 4th, और ये वाइट साइड 5th, और ये 6th। तो स्टूडेंट्स, फेस क्या होते हैं? ये इनको हम फेस बोलते हैं। तो एक कुबॉइड के पास, एक मैच बॉक्स के पास 6 फेसेस हैं। अब हम आते हैं एजेस क्या होती हैं? जो इसकी साइड्स होती है ना, इन एजेस को, साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं। एंड स्टूडेंट, वर्टेक्स, फेस हो गया हमारे पास, इनको पासा, फेस मींस पासा, तो फेसेस हो गया डिस्कस, एजेस हो गई। अब वर्टेक्स को डिस्कस करते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। नाउ स्टूडेंट्स, these are the 3 terms: face, edge and vertex. Now come on big table. You just know about the prism, pyramids and the solids with curved surface and its figures. No need to learn about their faces, edges and vertices. There is no need to learn it. Now students, हमने solids डिस्कस किया, प्रिज्म जिसके अंदर हमने स्क्वायर प्रिज्म जिसको मैंने क्यूब नेम दिया, क्यूबॉइड को हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म नेम दिया, ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने स्टडी किया, पेंटागोनल प्रिज्म हमने स्टडी किया ऑन प्रीवियस पेज। एंड पिरामिड्स में हमने ट्रायंगुलर पिरामिड्स जिसको मैंने टेट्राहेड्रन का नेम दिया, स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर बेस लेना है और ऊपर ट्रायंगुलर फेसेस बनाने हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड इसी तरीके से आप पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ कर सकते हो। देन कर्व्ड सरफेसेस वाली सॉलिड्स में हमने क्या डिस्कस किया? सिलेंडर, कॉन एंड स्फेयर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द main basic about 3D shapes. So you have to just recognize or just know how
to draw prism and pyramids. So for exercise, come in my next video. Thanks and have a nice day.